دیکھا ہوگا جب کسی کا کسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے تو پھر سلام بند ہو جاتا ہے، پھر سلام بند ہو جاتا ہے، پھر وہ سلام نہیں کرتے ہیں، پھر سلام ایک دوسرے سے کرتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے بھائی کیا بات ہے، یہ آپس میں سلام نہیں کر رہے؟ کہا کہ ان کا جھگڑا ہو گیا ہے، ان کے آپس میں کچھ چل رہی ہے، اس لیے ان کا سلام بند ہے۔ یہاں سے بزرگوں کا طریقہ، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، جو مرض لا دوا ہو یہ گھول کر پلا دے کیا نسخہ شفا ہے صلی علی۔ جی لگا کر بولے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حدیث شریف میں ہے جب اللہ کا نام بلند ہوتا ہے، اللہ کے نام کی تکبیر بلند ہوتی ہے، جب اذان میں اللہ کا نام بلند ہوتا ہے تو شیطان بھاگتا ہوا نظر آتا ہے۔ ذرا اللہ کا نام بلند کیجئے اور شیطان کو تھوڑا بھگائیے، مل کر بولیے اللہ اکبر، اور بھگائیے، تھوڑا سا اور بھگائیے، جی لگا کر بولیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ارے یہ بولنے کی نعمت ہے اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ ہم گونگے پیدا ہوتے، ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا جو گونگے پیدا ہوئے ہیں، ہماری کون سی فضیلت کہ اللہ نے ہمیں بولنے کی نعمت عطا فرما دی، اور بہت سے لوگ ایسے جو پیدائشی گونگے پیدا ہوئے ہیں۔ تو آؤ اس نعمت کی شکریہ میں جو اللہ نے ہمیں بولنے کی نعمت عطا کی ہے، اس کی شکریہ میں بلند آواز سے بولو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، آج کے اجلاس سے پہلا پیغام آپ یہی لے کر جائیے، زیادہ سے زیادہ آپ کو درود شریف پڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ درود شریف کا ورد کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ درود شریف کی کثرت کرنا ہے۔ اگر آپ کو بہت لمبی درود شریف نہیں آتی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، 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 اسی کا ورد کریں۔ آپ جب یہاں سے جائیں درود شریف پڑھتے ہوئے جائیں، جب آپ اپنے گھر پہنچیں درود شریف پڑھتے ہوئے پہنچیں، جب بستر پہ لیٹے درود شریف پڑھتے ہوئے لیٹ جائے، اپنی توجہ کو ادھر ادھر کرنے کی بجائے گنبد خضرا کی طرف کریں اور درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی کیفیت یہ ہونا چاہیے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کولے آکے صلی اللہ کہتے کہتے۔ جی لگا کر بولے سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دیکھیے آپ علماء کرام کی چہروں کی زیارت کر رہے ہیں، اور جو بھی کچھ ہے تھوڑی سی دیر کے لیے بالکل آرام سے بیٹھ جائیں۔ دیکھیے ہمارے مہمان خصوصی شانو بھائی بھی تشریف لے کے آ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ بالکل تھوڑی سی توجہ ادھر رکھیے، میں تھوڑی سی دیر کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور اگر جو ہے ادھر ادھر ہوتا رہا تو سمجھ لیجئے پھر کچھ سمجھ نہیں آ پائے گا، آپ کے کچھ ذہن نہیں بن پائے گا۔ آئیے جی لگا کر بولے سبحان اللہ، تھوڑا دم لگا کر بولیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیے جتنا جوش و خروش کے ساتھ آپ سنیں گے انشاءاللہ تعالی اسی جوش و خروش کے ساتھ ہم بھی آپ کو سناتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو آپ پہلا پیغام آج کے اجلاس سے یہی لے کر جائیے، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ درود شریف کا ورد کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا ہے۔ آؤ ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، جو مرض لا دوا ہو یہ گھول کر پلا دے کیا نسخہ شفا ہے صلی علی محمد۔ اور اعلیٰ حضرت نے کہا ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سرورت پہ لاکھوں سلام۔ درود شریف کے حوالے سے آپ نے حدیثیں سنی، آئیے ایک حدیث سلام کے حوالے سے سنتے چلیے۔ آقا نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ما من احد یسلم علیکہ الا رد اللہ روحی علیکہ حتی رد علیہ السلام، رواہ ابو داؤد فی سننہ۔ پورا مجمع لب کھولے حدیث کے نام پر جھوم کے بولو سبحان اللہ،
आका ने फरमाया मेरा कोई भी चाहने वाला कहीं से भी जब मुझ पर सलाम पढ़ता है गुंबदे खजरा से मैं उसका सलाम सुन भी लेता हूँ और वहीं से उसका जवाब भी अता कर देता हूँ, वहीं से उसका जवाब भी दे देता हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, इसलिए हम सलाम पढ़ते हैं क्योंकि सरकार जवाब देते हैं अल्लाह अकबर। और आपको मालूम है जब हम दुरूद और सलाम पढ़ते हैं तो फरिश्ते इस सलाम को, इस दुरूद को सरकार की बारगाह में लेकर भी जाते हैं और बताते हैं या रसूल अल्लाह फला फला आपके उम्मती ने, उसके वालिद का नाम ये है, वो यहाँ का रहने वाला है, उसने आपकी बारगाह में दुरूद का तोहफा भेजा है, आपकी बारगाह में सलाम का तोहफा भेजा है। अज़ीज़ान मोहतरम, हम सलाम कैसे पढ़ते हैं? जब तक सांसें जारी हैं तब भी सलाम पढ़ते हैं और जब सांसें बंद हो जाएंगी तब कैफियतें क्या होंगे? जमील कादरी ने कहा था ए शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम सीनती अर्शे मौला अस्सलातु वस्सलाम मोमिनों पे तेरा हुक्म अपने आका पे तुम है फरिश्तों का वसीफा अस्सलातु वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलक इमाम आज़म, मसलक इमाम आज़म, दमदार दमदार फैज़ान औलिया किराम। अज़ीज़ान मोहतरम, इसलिए हम सरकार की बारगाह में सलाम भी पढ़ते हैं, हम सरकार की बारगाह में दुरूद शरीफ भी पढ़ते हैं। और आपने देखा होगा जब किसी का किसी से झगड़ा हो जाता है तो फिर सलाम बंद हो जाता है, फिर सलाम बंद हो जाता है, फिर वो सलाम नहीं करते हैं, फिर सलाम एक दूसरे से करते हुए नजर नहीं आते हैं। पूछा जाता है भाई क्या बात है, ये आपस में सलाम नहीं कर रहे? कहा कि इनका झगड़ा हो गया है, इनके आपस में कुछ चल रही है इसलिए इनका सलाम बंद है। यहां से दोस्तों इस बात को भी समझ कर जाना, जो भी सरकार पर सलाम पढ़ रहा है समझ लेना वो सरकार के गुलाम है, वो सरकार के चाहने वाले हैं, और जिनको सलाम से चिढ़ है समझ लेना इनका नबी से झगड़ा हो चुका है, इसलिए इनका नबी से सलाम बंद है। और फिर आज डिजिटल इस दौर ने मामले को बड़ा आसान कर दिया है। लोग ये समझते हैं कि मियां आप सलाम करते हो, सलाम कैसे पहुंचता है? तो आज इस मोबाइल ने इस मसले को भी हल कर दिया है। मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप है, मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप है। आपका साथी अगर दुबई रहता है आप उसमें बोलिए अस्सलामु अलैकुम, क्लिक कीजिए, सेकंड नहीं लगेगा आपका सलाम दुबई पहुंच जाएगा, सलाम दुबई पहुंच जाएगा। और आपने बोला अस्सलामु अलैकुम, आपके साथी दुबई में आपके सलाम को सुन सकता है, लिखकर भेजा उसे पढ़ सकता है, हमें कहने नहीं दिया जाए। अरे मोबाइल के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से अगर आपका सलाम दुबई पहुंच सकता है, आपका साथी मोबाइल के जरिए आपके सलाम को सुन सकता है, तो गुंबदे खसरा के मकी हमारा सलाम यहां से सुन भी सकते हैं और फरिश्तों के जरिए हमारा सलाम गुंबदे खसरा पहुंच भी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुफ्ती जफर नूरी साहब किबला, नारे तकबीर। यहाँ पर कुरान शरीफ की दलील हो जाए अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। अजीजान मोहतरम गौर से सुनिए, अगर किसी को व्हाट्सएप की समझ में ना आए, व्हाट्सएप की समझ में ना आए तो फिर कुरान की भी दलील आप सुनते चलिए, लेकिन साथ में ये भी मैं आपको बात बताता चलूं। एक साहब जो है नया नया मोबाइल भी खरीद लिए, व्हाट्सएप भी उसमें डाल लिए, सारे कुछ फंक्शन उसमें चालू कर लिए, अब उसके साथ सलाम भेज रहे हैं, लेकिन सलाम जा नहीं रहा है, सलाम पहुंच नहीं रहा है, सलाम पढ़ नहीं रहा है। अब बड़े परेशान होने के बाद वो हाफिज ताहिर साहब के पास आए और कहने लगे आपके मोबाइल से तो सलाम हाल पहुंच जाता है, आपके मोबाइल से तो सलाम बहुत जल्द पहुंच जाता है, मैं 1 घंटे से लगा हुआ हूं लेकिन सलाम जा ही नहीं रहा है, सलाम आगे पहुंच ही नहीं रहा है, बात क्या है? हाफिज साहब ने सारी चीजों को चेक कर लिया और उसके बाद कहा सारी चीजें एक्यूरेट हैं, बताओ तो सही आपने इसमें नेट के बैलेंस को डाला है कि नहीं, आपने इसके अंदर रिचार्ज कराया है या नहीं? अब वो कहने लगे नेट का बैलेंस तो नहीं डलाया है, नेट का रिचार्ज तो नहीं कराया है। हाफिज साहब ने कहा अगर सलाम आप व्हाट्सएप के जरिए अपने साथी को भेजना चाहते
तो आपको इंटरनेट का बैलेंस कराना पड़ेगा, रिचार्ज कराना पड़ेगा, तभी सलाम पहुंचेगा। मुझे कह लेने दीजिए, अगर व्हाट्सएप से सलाम भेजना है, मोबाइल से सलाम भेजना है, तो इंटरनेट के बैलेंस की जरूरत, और गुम्बते खसरा सलाम भेजना है तो इश्क़े रसूल के बैलेंस की जरूरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर इश्क़े रसूल का बैलेंस नहीं तो समझ लीजिए आदमी इसी चक्कर में रहेगा, सलाम जा ही नहीं रहा है, सलाम पहुंच ही नहीं रहा है, सलाम कैसे जाएगा, सलाम कैसे पहुंचेगा। तो आइए मैं आपको एक कुरान की दलील भी देता चलूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जब लश्कर जा रहा था तो चूंटियों की मलका ने कहा था, कालत नमलतुन या अय्युहन नम उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु व हुम ला यशउरून फतबस्सम ताहिकम मिन कौलिहा। वो चूंटी कहने लगे, ए चूंटियों जल्दी जल्दी अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ जाए और बेख्याली में वो तुम्हें पीस डाले, बेख्याली में वो तुम्हें फोड़ डाले। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस चूंटी की इस बात को सुन लिया, फतबस्सम ताहिकम मिन कौलिहा, और उसकी इस बात पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हंसे। अज़ीज़ान मोहतरम, कितनी दूरी पर थे सुलेमान अलैहिस्सलाम? मुफस्सिरीन लिख रहे हैं मिन सलासति अमयाल, 3 मील का फासला था, तकरीबन 7 किलोमीटर की दूरी पर वो चूंटी थी। मैं कहना चाहूंगा 7 किलोमीटर तो बहुत दूर होता है। आप अपने कान के अंदर आसार चूंटियों को रख लें और फिर आप सुनने की कोशिश करें। आप समझ लीजिए चूंटियों की आवाज को नहीं सुन पाएंगे, चूंटियों की बात को नहीं सुन पाएंगे। कान में आपने रखा हुआ है लेकिन नहीं सुन पाएंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, हम कान में चूंटी रख लें फिर न सुन पाए, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम 7 किलोमीटर के फासले पर चूंटी की बात को सुन भी रहे हैं, चूंटी की बात को समझ भी रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं। हमें कह लेने दिया जाए, अरे जब सुलेमान अलैहिस्सलाम 7 किलोमीटर के फासले पर एक चूंटी की बात को सुन सकते हैं तो हमारे आका हमारा यहां से या रसूल अल्लाह कहना भी सुन सकते हैं, हमारा सलाम भी सुन सकते हैं। इसीलिए तो बड़े वाले आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, हम यहां से पुकारें वहां वो सुने, हम यहां से पुकारें वहां वो सुने। मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम और नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत में लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद नूरी साहब किबला, जिंदाबाद। इसलिए दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा, बेशक, और सलाम पढ़ेंगे तो जवाब मिलेगा। आहा, सुभान अल्लाह। इसलिए दुरूद भी पढ़िए, सलाम भी पढ़िए। आज के इस इजलास से मैं आपको ये पैगाम देना चाहूंगा कि आप अपने घर में कुछ चीज़ें ले लें, 100 चीज़ें ले लें और उन चीज़ों को अपने घर में साफ सुथरी जगह पर चादर बिछाकर उस पर रख लें और उन चीज़ों पर आप दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। घर में आपके अगर बच्चे हैं तो उन्हें भी बिठा लें, उनसे भी कहें हुजूर पर दुरूद शरीफ पढ़ें। जब आप हुजूर पर दुरूद शरीफ रोजाना पढ़ेंगे, रोजाना इसका अपना वक्त निकालिए। अगर अल्लाह आपको तौफीक दे तो 1000 मरतबा पढ़ लीजिए, और अल्लाह तौफीक दे और ज्यादा कर लीजिए, वरना कम से कम 100 मरतबा भी पढ़ेंगे ना तो उसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, 10-20 मिनट ही लगेंगे, उससे ज्यादा आपका टाइम नहीं जाएगा। लेकिन समझ लीजिए इसकी बरकतें इतनी मिलेंगी, इतनी मिलेंगी, इतनी मिलेंगी कि उन बरकतों को आप दुनिया में भी महसूस करेंगे, कब्र में भी महसूस करेंगे और मैदान महशर में भी महसूस करते हुए नजर आएंगे। तो इसलिए दुरूद शरीफ का विर्द रखें। और फिर आपको बताऊं, ये जो हम जश्न ईद मिलादुन नबी मना रहे हैं, मिलाद का मतलब होता है जन्मदिन, मिलादुन नबी मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन। और जन्मदिन पर हम क्या करते हैं, हम अपने बच्चों का जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। और अगर
जायज तरीके से कर रहे हैं तो कर सकते हैं। फिर जन्मदिन के मौके पर बच्चे क्या कहते हैं, हमें फला गिफ्ट चाहिए, हमें फला चीज चाहिए, हमें फला चीज चाहिए। अजीजान मोहतरम, फिर हम उनको वो चीज दिलाते हुए नजर आते हैं, उनकी खिदमत में वो चीज पेश करते हुए नजर आते हैं। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन पर हम क्या सरकार की बारगाह में पेश करें? अजीजान मोहतरम, हम तो गरीब हैं, हम सरकार को क्या पेश कर सकते हैं? लेकिन अगर आप कुछ पेश कर सकते हैं तो वो दुरूद सलाम का तोहफा है। ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ का तोहफा पेश कीजिए। इंशाअल्लाह ताला अगर सरकार राजी हो गए तो समझ लेना दुनिया भी हमारी कामयाब होती हुई नजर आएगी, आखिरत में भी हम कामयाब होते हुए नजर आएंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा दुरूद सलाम का विर्द करें, ज्यादा से ज्यादा दुरूद सलाम की कसरत करें। आइए जी लगाकर मेरे साथ बुलंद आवाज से मिलकर कहें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए इस मजलिस की शान को भी समझते चलिए। एक हदीस सुनिए, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सलक तरीक़न यल्तमिसु फ़ीही इल्मन साक़लल्लाहु लहु तरीक़न इलल जन्नह व मज्तमा क़ौमुन फ़ी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह व यतलूना किताबल्लाह व यतदारसूनहु बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीनह व ग़शियतहुमुर रहमह व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फ़ी मन इंदह। रवाहु मुस्लिम फ़ी सहीहिही। पूरा मजमा लब खोले, हाथों को बुलंद करे, हदीस के नाम पर झूम के बोलो सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया, जो कोई दीन सीखने के लिए अपने घर से निकलता है, हर कदम के बदले वो जन्नत से करीब हो जाता है। बेशक। अब आप यहां जो आए हैं, आप किस लिए आए हैं? सिर्फ इसलिए आए हैं ताकि दीन की कुछ बातें सीखने को मिल जाएं। बेशक। यही मकसद है। और अगर यही मकसद है तो फिर तिरमिजी की एक और हदीस सुनिए, आपने ने फरमाया, अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन खरजा फी तलबिल इल्म व हुवा फी सबीलिल्लाह हत्ता यरजिअ। रवाहु तिरमिजी फी सुननिही। सुनन तिरमिजी की हदीस है। आका ने इरशाद फरमाया, जो कोई दीन सीखने के लिए अपने घर से निकलता है, अल्लाह ताला उसे इतना सवाब अता फरमाता है, इतना सवाब अता फरमाता है जितना सवाब अल्लाह मैदान के मुजाहिद को अता फरमाता है। मैदान का मुजाहिद कौन होता है? जो सर से कफन बांध के निकलता है। मैदान का मुजाहिद कौन होता है? जो जान को हथेली पे लेके निकलता है। जितना सवाब अल्लाह उस मर्दी मुजाहिद को अता फरमाता है, अल्लाह उसे भी उतना सवाब देता है जो दीन सीखने के लिए अपने घर से निकलता है। कब तक मिलता है? हत्ता यरजिअ, यहां तक कि वापस अपने घर ना पहुंच जाए। अजीजान मोहतरम, जब तक आप घर नहीं पहुंच जाएंगे, आपका समझ लीजिए एक एक लम्हा इबादत में लिखा जा रहा है। और आप यहां पर आकर जो बैठे हैं, इसकी शान क्या है मालूम है आपको? आका ने फरमाया, हदीस शरीफ के अंदर है, मुजालिसतुल उलमाई इबादतुन, उलमा की मजलिस में बैठना ये भी इबादत है। और एक हदीस में सरकार ने फरमाया, अन-नज़्रु इलल उलमाई इबादतुन, उलमा के चेहरों का दीदार करना ये भी इबादत है। और आज की मिशकात की हदीस सुनिए, मिशकात शरीफ के अंदर है, तदारुसुल इल्मी साअतन मिनल लैल खैरुम मिन इहयाइहा। रात में एक लम्हा पढ़ लेना या दीन की कोई बात सीख लेना, अल्लाह को सारी रात जाग कर इबादत करने से ज्यादा पसंद है। एक शख्स सारी रात जाग कर इबादत कर रहा है और एक शख्स एक लम्हा पढ़ रहा है, तो अल्लाह को कौन ज्यादा प्यारा, अल्लाह को कौन ज्यादा महबूब? जो एक लम्हा पढ़े वो समझ लीजिए अल्लाह को बहुत ज्यादा प्यारा है। तो इसलिए आपका एक एक लम्हा इबादत में गुजर रहा है। और आपको मालूम है आका ने क्या फरमाया, सारे लोग किसी जगह पर बैठ जाए, दीन की बातें सीखने सिखाने लग जाए, अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, ए फरिश्तों, जितने लोग वहां पर बैठकर दीन की बातें सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, ए फरिश्तों, सबके ऊपर रहमत व अनवार की बारिशें बरसाओ। फरिश्ते रहमत व अनवार की बारिशें बरसाते हैं। फिर अल्लाह फरमाता है, सबको अपने नूरानी परों से ढांप लो। फरिश्ते सबको नूरानी परों से ढांप लेते हैं। फिर अल्लाह फरमाता है, ए फरिश्तों, उनके दिलों पे सकीना नाजिल करो। आपकी जिंदगियों के अंदर बहुत ज्यादा टेंशन होंगे, बहुत ज्यादा मामला होंगे, लेकिन जब से आप हुजूर की हदीसें सुन रहे हैं, मुझे लग रहा है आप अपने टेंशन
टेंशनों को भूल गए होंगे, आप अपनी चिंताओं को भूल गए होंगे, क्योंकि फरिश्ते दिलों पे सुकून नाजिल कर रहे हैं, क्योंकि फरिश्ते दिलों पे इत्मीनान नाजिल कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ आका ने फरमाया वज़करकुमुल्लाहु फी मन इंदा, यही तक बस नहीं बल्कि अल्लाह ताला उन सब का जिक्र फरिश्तों के सामने फरमाता है जो जमीन पर दीन की बातें सीख रहे होते हैं, जमीन पर दीन की बातें सिखा रहे होते हैं। अल मुख्तसर ये, अल मुहिम ये, जो जमीन पर हुजूर का जिक्र कर रहे होते हैं, हुजूर का तज़किरा कर रहे होते हैं, हुजूर की मीलाद कर रहे होते हैं, उनका जिक्र अल्लाह फरिश्तों के सामने फरमा रहा होता है। हम बहुत गुनाहगार, हम बहुत सियाकार, हम बहुत खताकार, हमारी जिस्म का रोंगटा गुनाहों के दलदल में फंसा हुआ है, गुनाहों के दलदल में फंसा हुआ है। हमारी ज़बान में बहुत गुनाह मौजूद, हमारी आंखों में बहुत गुनाह मौजूद, लेकिन हमने क्या किया? नबी की मजलिस को सजा लिया, महफिल मीलाद को सजा कर बैठ गए। फिर अल्लाह ने इस महफिल की शान को इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि खुद खालिक अर्द समा उन लोगों का जिक्र फरमाता है जो जमीन पर हुजूर का जिक्र कर रहे होते हैं, जो जमीन पे हुजूर का तज़किरा कर रहे होते हैं। इसीलिए तो बरेली वाले आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, अर्श बतासा छेड़छाड़ फर्श पर तुरफा धूमधाम, अर्श बतासा छेड़छाड़ फर्श पर तुरफा धूमधाम। अरे कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। और आला हज़रत फरमाते हैं, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुशनुमा अर्श पे उड़ता है सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। देखिए अभी तक मैं देख रहा हूं कि गुंबदे खजरा के नेटवर्क सही तरीके से आ नहीं रहे हैं आपके अंदर। थोड़ा मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह, और जी लगा कर बोले या रसूल अल्लाह। देखिए मैं ये चाह रहा हूं जिस जज्बे के साथ मैं आपको सुना रहा हूं उसी जज्बे के साथ आप भी सुने। बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मेरी जानिब भी हो जाए इशारा। या रसूल अल्लाह। अरे सरकार का नाम लेने में भी शर्म आ रही है, बुलंद आवाज से बोलो या रसूल अल्लाह, मेरी जानिब भी हो जाए इशारा, चमक उठे मेरी तकदीर का सितारा, या रसूल अल्लाह, मेरी किस्मत में लिख दो तुम्हारा, या रसूल अल्लाह, करूं मैं फिर मदीने का नजारा, रसूल अल्लाह, करूं मैं फिर मदीने का नजारा, या रसूल अल्लाह। करूं मैं फिर मदीने का नजारा। अजीजान मोहतरम, तो इसी जोश खरोश के साथ, अदब और एहतराम के साथ इस महफिल में आप जिक्र सुनिए। और आइए आप मीलादुन नबी के हवाले से जिस आयत पाक की मैंने तिलावत की, अल्लाह उसमें इरशाद फरमा रहा है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक के आ गया अल्लाह की जानिब से नूर और रोशन किताब। इस आयत में अल्लाह ने नूर का जिक्र फरमाया और किताब का जिक्र फरमाया। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं नूर से मुराद हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है और किताब से मुराद कुरान अज़ीम फल फुरकान हमीद है। अब किताब का और नूर का जिक्र अल्लाह ने एक ही आयत में फरमाया। ऐसा भी हो सकता था कि किताब का जिक्र किसी और आयत में हो जाता, नूर का जिक्र किसी और आयत में हो जाता, लेकिन अल्लाह ने एक ही आयत में किताब का भी जिक्र फरमाया, उसी आयत में नूर का भी जिक्र फरमाया। ऐसा क्यों फरमाया? तो इस सिलसिले में मुफस्सिरीन किराम कई हिकमतें बयान करते हैं, उसमें से एक हिकमत मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। उस हिकमत को आप गौर से सुने ताकि आपको समझ में आएगा कि एक ही आयत में अल्लाह ने नूर का जिक्र और किताब का जिक्र क्यों फरमाया। तो आइए सुनते चलिए। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि किताब पढ़ने के लिए नूर की जरूरत, बगैर नूर के आदमी किताब का मुताला नहीं कर सकता है, किताब को नहीं पढ़ सकता है। अगर किसी अंधेरे कमरे के अंदर आपको कोई किताब दे दी जाए और आपसे कहा जाए कि इस किताब को पढ़िए, तो आप उस किताब को नहीं पढ़ पाएंगे। किताब पढ़ने के लिए नूर की जरूरत, ट्यूबलाइट के नूर की जरूरत, मरकरी के नूर की जरूरत, बल्ब के नूर की जरूरत, चांद सूरज के नूर की जरूरत। जब तक कि यह अनवार ना हो आदमी किताब
किताब नहीं पढ़ सकता है, आदमी किताब का मुताला नहीं कर सकता है, और फिर अगर ये सारे के सारे अनवार मौजूद हो, ये सारे के सारे नूर मौजूद हो, और किसी के पास किताब पढ़ने के लिए इल्म का